Welcome to SDMIC Classes. Learning accounts is very easy. This is in continuation of my previous video about Learn Accounting Part 2, and Part 2 was given in two subsections, Part 2A and Part 2B. And those three videos, Part 1, Part 2A and Part 2B, we briefly explained about accounts, accounting, how accounting work, accounting as profession, rules of accounts, aspects of accounts, registers, subsidiary registers, journal, ledger, posting, accounting cycle, and types of accounts. Also, we discussed about the importance of accounts also in that briefly, and the scope of accounts. In this Learn Accounting Part 3 video, I will briefly explain the responsibilities of accountant, importance of accounting, capital accounts, and accounting equations. Accounts and its benefits, responsibilities of accountant. What are the responsibilities of an accountant? Accountants help businesses maintain accurate and timely records of their finances and books of accounts, reporting. Accountants are responsible for maintaining records of a company's daily transactions and compiling those transactions into financial statements such as the income statement, balance sheet, and statement of cash flows, etc. Any reports we require, for example, somebody's account, XYZ company's account, or any individual party's account, or an asset account, or a liability account, loan account, anything. If we want to get a detail immediately, we have to call the accountant and to get the reports. And if the accounts are maintained properly, and we will get the reports immediately. At the same time, in some monthly statements, quarterly statements, profit and loss account, all these statements are required from the accounts. And also for managerial purposes, managerial decision making records are also compiled from the accounts department. But this is a type of a separate section. If it is a very large organization, managerial accounts are there. Tax accountants will be separate, and cost accounts and cost accountants, and many other categories are there for this particular purposes. So financial accountants will make further financial statements required for that particular requirements. Various accountants are there also there, and mainly financial accounts. Accountants also provide other services such as performing periodic audits or preparing ad hoc management reports, etc. Means like financially for statutory audit requirement companies, means that the statutory audit should conduct on time, and the report should be prepared and should be submitted to the, if it is a corporate company, should be submitted to the ROC, Register of Companies, and all. Also, some limited companies, the report should be published to stock exchange and all, and also report on should be published on the newspaper, and many other things. And it's income tax return filing, and tax return filings also should be done on timely basis. So that should be done, and the report should, and the basic things and all these things should be prepared by the accountants. The necessary documents and necessary reports should be prepared by the accountants. So accountants has a very good role in the business. What skills are required for accounting? Accountants hail from a wide variety of backgrounds. Generally speaking, however, attention to detail is a key component in accountancy, since accountants must be able to diagnose and correct stubborn errors or discrepancies in a company's accounts. Accountants has a very vital role and a very wide activities in that in the business of a organization. So the transactions and all those the documents should be properly diagnosed, and they should be analyzed, and should be recorded properly, and should be organized and grouped, and the various activities, and also all the reports required should be prepared. ये सब अगर काम अगर अकाउंटेंट का तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
उनको सब डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है क्या देखने का, और कौन सा ग्रुप में जाने का, कौन सा ग्रुप अगर चेंज हो गया तो फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर का अगर इनडायरेक्ट में डाल दिया तो जीपी में इफ़ेक्ट पड़ेगा, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में फ़र्क पड़ेगा, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेम वे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में डालेगा तो, और सेम वे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालेगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल में डालेगा, यानी तो प्रिंसिपल गलत होगा, और कोई रिसीवेबल का पेएबल में डालेगा, पेएबल का रिसीवेबल, अगर उल्टा सुल्टा भी नहीं करना चाहिए। तो ये सब ध्यान देना चाहिए, और कौन सा ग्रुपिंग कौन सा ये प्रॉपर होना चाहिए। तो ये प्रॉपरली एनालाइज करके, प्रॉपरली डिसाइड ये करके, उसके हिसाब से उसको कैटेगराइज करके ये करने का रिकॉर्डिंग। और इफ़ दर इज़ कुछ प्रॉब्लम रहेगा, या जो अपना उसका सबॉर्डिनेट्स या कुछ स्टाफ है कुछ ये करेगा, तो उसको चेक करके उसको प्रॉपर रेक्टिफाई करने का ये सब काम अकाउंटेंट का है। सो मैथमेटिकल स्किल्स आर हेल्पफुल बट are less important than in previous generation due to wide availability of computers and calculators. Earlier time क्या होता था, कंप्यूटर अकाउंटिंग नहीं होता था। लाइक इन माई मीन्स 85-84 वो पीरियड में तो हम लोग इतना कंप्यूटर्स का यूज़ नहीं करते थे। तभी मैनुअल रजिस्टर था, वो मैनुअल रजिस्टर में पूरा लिखना पड़ता था, और कैलकुलेशन, और अगर थोड़ा सा जो पोस्टिंग में कुछ इधर उधर हो गया तो मिस्टेक होता है। वो फिर वो फाइंड आउट करने के लिए, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में फाइंड आउट करने के लिए डेज लगता था, कोई कोई डेज या वीक्स भी लगता था वो एरर्स फाइंड आउट करने के लिए। सो मैथमेटिकल एरर जो का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था पहले, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि इट इज़ कंप्यूटराइज्ड एंड देयर वोंट बी एनी मैथमेटिकल एरर्स। बट इफ देयर इज एनी प्रिंसिपल एरर्स दैट कैन नॉट बी फाइंड आउट इवन थ्रू द कंप्यूटर ऑल्सो। सो but one of the main problem of mathematical errors is solved by the application of computers and highly advanced accounting softwares. Importance of accounting. Why accounting is important? Accounting का ज़रूरत क्या है, क्या इसका importance क्या है? Accounting is a back office function where employees may not directly interact with customers, product developers, or manufacturing. However, accounting plays a key role in the strategic planning, growth, and the compliance requirements of a company. Accounting एक back office function है, वो directly involve नहीं करता है या इंटरेक्ट नहीं करते हैं कस्टमर्स के साथ में, या प्रोडक्ट डेवलपर्स के साथ में, मैन्युफैक्चरिंग में, ये सब एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करता है। लेकिन उसका जो मेन कंट्रोल पॉइंट ये यहाँ होगा। अकाउंटिंग एक मेन सेंटर है, बोलेगा तो एक हार्ट बोलते हैं ना, वो मेन सेंटर है। तो इस जो वो उसका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में, उसका ग्रोथ का अगर प्रॉपर रिपोर्टिंग रहेगा, तो एक कंपनी अगर समझो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर देगा, ओनर्स या शेयर होल्डर्स या जो भी है जो पैसा इन्वेस्ट किया है उनको अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा तो डिसीशंस गलत हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी अच्छा से चलता होगा लेकिन रिपोर्ट देते रॉन्ग जा रहे हैं, तो फिर वो रॉन्ग तरीके से निकल जाएगा। सेम वे अगर कंपनी अगर प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन रिपोर्टिंग हो रहा है अच्छा हो रहा है करके, मतलब प्रॉफिट कर रहा है या अच्छा से चल रहा है करके, जो रिपोर्टिंग होगा, जो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे जो रिपोर्टिंग करेगा, रॉन्ग रिपोर्टिंग होगा तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, कंप्लीट क्लोज डाउन भी करना पड़ेगा ऐसा जाके, अगर लॉस पाइल अप करके 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 लास्ट में एक दिन मालूम पड़ जाएगा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है करके। इसमें तो ऐसा सब प्रॉब्लम होता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Accounting is necessary for company's growth. Without insight into how a business is performing, it is impossible for a company to make a smart financial decision through forecasting. और आगे क्या करने का करके वो डिसीजन अगर प्रॉपर रिकॉर्डिंग और प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो नहीं हो पाएगा। तो without accounting, a company wouldn't be able to tell which products are its best sellers, how much profit is made in each department, and what overhead costs are holding back profits.
तो ये जो बताया था मैंने सलाह कि कॉस्ट अकाउंटिंग में भी इसका कॉस्ट अकाउंट्स का भी इसका ही पार्ट आ जाता है, क्या प्रॉफिट क्या कॉस्ट होता है, उसका क्या प्रॉफिट होना चाहिए, क्या प्राइसिंग रखना चाहिए तो क्या प्रॉफिट होगा। ये सब अगर प्रॉपर तरीके से अगर नहीं सेट करेगा तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो अकाउंटेंट का रोल इधर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अकाउंटिंग इज़ नेसेसरी फॉर फंडिंग। अभी इसके अलावा फंडिंग फॉर एग्जांपल, अभी फॉर एग्जांपल एक से प्रॉपर्टी कंसर्न होगा तो प्रॉपर्टर पैसा डालता है, अगर ज़्यादा कुछ ये जो जितना पैसा डाला है उससे जो चल गया, अभी आगे पैसे कुछ फ़ंड का ज़रूरत है, तो अगर समझो उनके पास अगर फ़ंड नहीं है तो बाहर से कुछ लोन लेना रहेगा, या नहीं तो कोई इन्वेस्टर को लाना रहेगा, तो फिर उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का बहुत ज़रूरत है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ज़रूरत है। जो परफॉर्मेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब परफॉर्मेंस क्या है और पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है क्या है कंपनी का, तो ये सब मालूम होना ज़रूरी है। तो इसके लिए भी अकाउंटिंग रखना बहुत ज़रूरी है। और सेम कुछ पार्टनरशिप होगा या कुछ बैंक से लोन लेना रहेगा या कॉरपोरेट रहेगा, तो समझो या कोई शेयर होल्डर्स का इन्वेस्टमेंट के लिए, या नहीं तो बाहर का इन्वेस्टर्स के लिए प्राइवेट इक्विटी फंड, या नहीं तो कोई बैंक से लोन लेना रहेगा, तो फिर वो अकाउंट्स ऑडिट करके प्रॉपर जो अकाउंटिंग करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है। परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, तो इसके लिए अकाउंटिंग रखना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग रखने का ज़रूरत है। ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट्स। द सेम रूल्स pertain to debt financing. So banks and other lending institutions will often require financial statements in compliance with accounting rules as part of underwriting and review process for issuing a loan. अभी बताया था लोन बैंक से लोन लेना रहेगा या नहीं तो बाहर से प्राइवेट फंडिंग का या इन्वेस्टर्स का, ये इसके सबके लिए अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है। Accounts and its benefits. Accounting is necessary for entry or exit of new owner. Small companies that may be looking to be acquired often need to present financial statements as part of acquisition or merger efforts. Instead of simply closing a business owner may attempt to cash out of their position and receive compensation for building a company. The basis for valuing a company is to use its accounting records. अभी छोटा छोटा कंपनीज रहेगा, मे वो कुछ छोटा छोटा कंपनीज को कुछ फंड्स की ज़रूरत पड़ेगा, तो अभी वो उसको ये कोई दूसरा कोई पार्टनर को लाएगा, तो पार्टनर को लाना रहेगा, या नहीं तो कोई पार्टनर को जो एक्सिट करना रहेगा, मतलब छोड़ के उसको अभी मुझे ये करने का नहीं है तो मुझे निकलने का है करके बोले, तो पार्टनरशिप में सब फर्म में या तो इसके लिए अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड्स रखना जरूरत है कि उसका क्लोजिंग का टाइम है, ये सब डिसाइड करने का फाइनल एक्सिट और एंट्री में भी ज़रूरत पड़ता है। सेम वे कोई जो कंपनीज को जो दूसरा कंपनीज को एक्वायर करता है, कोई कंपनीज को मर्जिंग करता है, कोई कंपनीज खरीदता है कोई दूसरा कंपनीज को, तो उसमें भी अकाउंटिंग रखना बहुत ज़रूरी है। दोनों कंपनी का अकाउंटिंग रखना बहुत ज़रूरी है, तो इसके बेसिस पे ही होता है। या कोई कंपनीज को मर्जर करता है, एक कंपनी दूसरा कंपनी के साथ में मर्जर करता है और दो कंपनी एक हो जाता है वैसा, तो ये सब चीज़ के लिए अकाउंट्स रखना पड़ता है। कोई कंपनी में अगर समझो कोई सोचेगा मीन्स मेरा ये बिज़नेस छोड़ के मुझे दूसरा उसके जो कुछ दूसरे को जो इसमें लाना है करके बोलेगा, तो उसमें भी अकाउंट्स अगर रखने का बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं रहेगा तो प्रॉपर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम होता है, तो अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है ये सब केसेस के लिए। Accounting is necessary to make payments. A company naturally incurs debt, and a part of the responsibility of managing that debt is to make payments on time to the appropriate parties. Without positively fostering these business relationships, a company may find it difficult to get a key supplier or vendor. A company का जो बिज़नेस करते रहेगा तो लेना देना रहता है, तो एक पर्टिकुलर जो है मीन्स हम लोग जो परचेस जिससे करते हैं, जो भी रेवेन्यू आइटम रहेगा या कैपिटल आइटम रहेगा, जो भी आइटम है या कुछ एक्सपेंडिचर रहेगा, ये सबके लिए हम लोग क्रेडिट पे लेते हैं
तो वो उन लोग को सब टाइम पे लेने का, फॉर एग्जांपल अभी कुछ और दूसरा कुछ लोन रहेगा बैंक से या किसी पार्टी से लोन रहेगा, उनको सबको टाइम पे पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सेम वे टैक्स लाइबिलिटीज़ को टाइम पे पेमेंट करना ये बहुत ज़रूरी है, और पार्टीज़ को पेमेंट टाइम पे करना। तो ये क्या है, गुडविल और रिलेशनशिप अच्छा रहता है, टाइम पे पेमेंट करना, ये सब चीज़। तो उसके लिए भी अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है। Through accounting, a company can always know whom to pay, how much to pay, and when those debts are becoming due for payment. कभी पेमेंट का ड्यू हो गया वो टाइम पे, कभी पेमेंट देना है, कभी कहना कितना देना है, ये सब चीज़ मालूम पड़ जाएगा। Accounting is necessary to collect payments, and company may agree to extend its credit to its customers. Same way सेल जो हम लोग बिजनेस करते टाइम में खाली देना नहीं, लेना का भी रहता है, मतलब उधारी देना भी पड़ता है। मतलब जो मटेरियल हम लोग क्रेडिट पे देना पड़ेगा तो कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करना पड़ता है। तो इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग कैश at the time of sales, it may give an agreement or extend customer trade credit terms. उधारी पे माल देने का मतलब क्रेडिट पे क्रेडिट सेल्स। So without accounting, a company may have a hard time keeping track of who owes the money, how much to get, and when that money is due to be collected. Accounting अगर नहीं रहेगा तो कंपनी को इट पॉसिबल ही नहीं है कितना पैसा किससे कितना पैसा लेने का है, कितना है, कभी लेने का है, एक सब चीज़ कभी ड्यू हो रहा है, कभी लेने का है, सब चीज़। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Now, accounting may be required for SEBI, Stock Exchange Board of India, and public. पब्लिक कंपनीज आर, ये सब ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है बट स्टिल एक ये बता रहा हूँ। पब्लिक कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इशू and public periodic financial statements in compliance with the generally accepted accounting principle GAP. This is already explained किया है जो previous slide में। Without these financial statements, a company may be delisted from the stock exchange. अभी ये जो बताया था मैंने ऑलरेडी, पब्लिक कंपनीज को जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करके और जो रिपोर्ट पब्लिश करना पड़ता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपना मीन्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना पड़ता है और पब्लिश करना पड़ता है, अदरवाइज वो एक्सचेंज से डिलिस्ट करेगा। अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर टैक्स अथॉरिटीज। विदाउट प्रॉपर टैक्स अकाउंटिंग compliance, a company may receive fines or penalties, and continuous default and tax evasion may lead to action by tax authorities and they can freeze bank account. अगर प्रॉपर अकाउंटिंग अकाउंट्स रिकॉर्ड्स नहीं रखेगा और टैक्स अकाउंटिंग का अगर प्रॉपर ये कंट्रोल नहीं रहेगा तो अथॉरिटीज़ से उनका जो नोटिस आते रहेगा और बार बार अगर डिले होते रहेगा तो कोई भी लेट पेमेंट रहेगा तो इंटरेस्ट पेनल्टी ये सब चीज़ें, अगर रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करेगा तो पेनल्टी से हो जाता है। ये सब ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो और अगर समझो ज़्यादा अगर कुछ डिले हो रहा है और कंटिन्यूस डिफ़ॉल्ट रह रहा है, बढ़ते जा रहे हैं तो टैक्स अथॉरिटी से एक्शन ले सकता है। और बहुत ज़्यादा मीन्स टोटल डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो फिर वो अपना बैंक अकाउंट फ्रीज भी कर सकता है। Example of accounting. To illustrate double entry accounting, imagine a business sends an invoice to one of its clients. An accountant using double entry method records a debit to accounts receivables which flows through the balance sheet and a credit to sales revenue which flows through to the income statement. When the client pays the invoice amount, the accountant credits accounts receivables and debits cash. This is a double entry method. Already मैंने आपको previous part में बताया था। Double entry accounting is also called balancing the books, as all of the accounting entries are balanced against each other. मतलब एक double entry में एक debit होता है, entry होता है equal amount का, credit entry भी credit भी होना चाहिए। So that way it works. Then so the accounting balancing proper हो जाता है। If the entries aren't balanced, the accountant knows there must be a mistake somewhere in the general ledger. तो इसमें अगर ये जो अगर कुछ डिफरेंस रहेगा तो मालूम पड़ेगा जनरल लेजर में कुछ तो किधर ना कुछ गड़बड़ हुआ है, मिस्टेक हुआ है।
सो अभी ये जो अकाउंटिंग मीन्स जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का प्रॉब्लम नहीं होता है, वो बैलेंसिंग का नहीं होता है, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर अपने आप केयर कर लेता है, टेक मीन्स बैलेंसिंग करता है। लेकिन प्रिंसिपली अगर बहुत सारा मिस्टेक हो सकता है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। प्रीवियसली हम लोग को ये सब जो अकाउंट जो अरिथमेटिकल एरर्स का तो बहुत प्रॉब्लम होता था, तो वो प्रॉपर अगर अकाउंटिंग करता था तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था। एग्जैक्टली जो डेबिट और क्रेडिट इक्वल, मतलब डबल एंट्री सिस्टम प्रॉपर मेंटेन करता था तो वो प्रॉब्लम नहीं होता था। दैट problem is resolved now by the use of accounting softwares, but principal errors can be possible. That should be taken care by the accountant. Now refer worksheet. अभी इसमें मैंने थोड़ा आप लोगों को कैपिटल अकाउंट के बारे में बताएगा। इन केस ऑफ ए प्रोप्राइटरी बिजनेस ओनली वन कैपिटल अकाउंट विल बी देयर, एक ही कैपिटल अकाउंट मेंटेन करता है। और proprietary business में, क्योंकि proprietor is the investor, proprietor is the only one person is the owner. The money invested by the owner or the proprietor in the business is capital account. The capital account is taken in the liability side of the balance sheet, and profit added and drawings deducted every year ये होता है। now एक एग्जांपल बता रहा हूँ। कैपिटल अकाउंट लिया और उसमें ऐड कुछ अगर एडिशनल फंड डाल दिया वही पर्टिकुलर ईयर में, जो अकाउंट डाल दिया कोई भी अकाउंटिंग पीरियड में जो डाल दिया, एडिशन को ऐड कर देते हैं और प्रॉफिट का जो ऐड कर देते हैं, या अगर कुछ लॉस रहेगा तो उसको डिडक्ट करते हैं, तो ये हो जाता है। और लेस ड्राइंग्स, टोटल में से जो लेस ड्राइंग्स, वो जो ये जो अपना बैलेंस शीट का फाइनल कॉलम में आ जाता है। Whereas in the case of a corporate company, capital account is presented in a different way, अलग अलग तरीके प्रेजेंट करता है। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कुछ अलग से दिखाता है। और ये होता है, ये जो अभी कॉर्पोरेट कंपनीज में, here the shareholders are the owners and money invested in the business is called equity share capital. shareholders जो होते हैं वही ओनर्स होते हैं, मतलब कितना भी, फॉर एग्जांपल थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकता है, थाउजेंड्स का मीनिंग थाउजेंड्स ऑफ ओनर्स, लेकिन मेन जो ज़्यादा शेयर होल्डर्स, जो ज़्यादा मेजर शेयर होल्डर्स को वो उसका कंट्रोल आ जाता है हाथ में, मैनेजमेंट। इट विल बी टेकन इन द बैलेंस शीट एज इक्विटी शेयर कैपिटल एज इश्यूड एंड पेड अप। एक बता रहा हूँ आप लोग को, ये सब आपको समझने के लिए मीन्स टोटल एकदम प्रॉपर समझ में आ जाएगा what is how to maintain that. ये ब्रीफ है, और इन डिटेल जाना चाहिए तो इट्स अ वेरी वास्ट थिंग। सो ये जानकारी आप लोग को ज़रूरत है, दिस मच यू शुड नो। what is this, what is equity capital, what is owners capital, what is means जो partners capital, ये सब जो चीज़ आपको मालूम पड़ना चाहिए। इसके लिए जब दे रहा हूँ तो प्रेजेंटेशन इन द मीन्स कॉर्पोरेट कंपनी में क्या शेयर कैपिटल का ऐसा होता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल सो मेनी नंबर ऑफ शेयर्स, फॉर एग्जांपल 1 लाख या 10 lakhs इक्विटी शेयर्स ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ सो मैनी, मीन्स फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ होगा या कुछ 100 रुपीज़ होगा, जो भी है, जो पर शेयर इतना है, तो ऑथराइज हो इधर इनसे अपना मीन्स इससे शेयर कैपिटल का, ऑथराइज शेयर कैपिटल का ये है, इससे आगे नहीं इश्यू कर सकते हैं, या अगर इससे इश्यू करना रहेगा देन दिस ऑथराइज कैपिटल लिमिट शुड बी इंक्रीज्ड। फॉर एग्जांपल ये 1 करोड़ का अगर जो शेयर कैपिटल का लिमिट मतलब 10 lakhs इक्विटी शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स एट द रुपीज़ ऑफ 10 पर शेयर रहेगा, तो 1 करोड़ 10 लाख शेयर्स रहेगा, और वो 1 करोड़ का अमाउंट है, तो ये 1 करोड़ अमाउंट तक की इश्यू कर सकता है शेयर कैपिटल। तो और ये अगर बढ़ाना रहेगा देन दिस नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करके ये जो लिमिट जो है, मतलब 5 करोड़ का करना रहेगा, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करके ये 5 करोड़ का शेयर्स को परमिशन लेना पड़ेगा ROC से, और ये सब से परमिशन लेना पड़ेगा। अभी हम लोग को ये जो 1 करोड़ इक्विटी कैपिटल शेयर ऑथराइज कैपिटल से नहीं पड़ेगा, हम लोग को और ज़्यादा ज़रूरत है, तो और थोड़ा ये हम लोग को बढ़ाने का, तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा। बट
once it is fixed, ये जो particular जो without before what is the limit given in the memorandum में ये जो जितना limit अगर दिया है, जो permission लिया है, उससे आगे ये issue और एंड पेड अप कैपिटल नहीं दे सकते. मतलब ये इश्यूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल है. सो मेनी नंबर ऑफ शेयर्स, फॉर एग्जांपल ये 10 लाख लिया, उसमें से 5 लाख का इशू किया या 6 लाख का इशू किया, मैक्सिमम 10 लाख तक इशू कर सकते हैं. दैट मीन्स ये जो समझो 50 लाख का किया, 60 लाख का किया, नहीं समझो मैक्सिमम 1 करोड़ तक ही जा सकते हैं. अगर ज़्यादा बढ़ाना रहेगा देन द ऑथराइज कैपिटल शुड बी, द परमिशन शुड बी टेकन एंड देन उसका जो लिमिट बढ़ा के रखना पड़ेगा. सो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस. Now, profit during the year are taken under reserves and surplus after allocating and distributing dividend. ये जो भी शेयर होल्डर्स है उनको जो साल में जो बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उसका शेयर ऑन प्रॉफिट देना पड़ेगा. दैट इज इन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में वो उसको डिविडेंड बोलते हैं. जो शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट दे रहे हैं दैट इज डिविडेंड. वो डिविडेंड देना पड़ता है. डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में जो भी आएगा, कुछ जनरल रिजर्व्स में डालते हैं, कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कोई इक्विटी कुछ प्रॉपर्टीज़ लेना रहेगा, कोई मशीनरी लेना रहेगा या कुछ मेंटेनेंस रहेगा, कुछ बिल्डिंग के लिए कुछ रिजर्व्स रखते हैं पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उसके लिए रखता है. कुछ जनरल रिजर्व रखता है. उसके अलावा जो बैलेंस आ रहा है एलोकेशन के बाद में जो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके रिजर्व सरप्लस के अंडर में आ जाता है. सो दिस इज अबाउट कॉर्पोरेट कंपनीज मेंटेनिंग द कैपिटल अकाउंट. सो now here I am giving format of partnership capital account as below. The two types of capital accounts can be maintained in as decided by the partners. ये partnership में कुछ अलग तरीके से जो capital account maintain करता है. भले जो प्रॉपरेटर का जो बताया था वो इसका हिस्सा होगा, लेकिन हम पार्टनर्स विल बी देयर. तो पार्टनर्स का टोटल जो आके कैपिटल में आ जाते हैं और मेंटेन टू तरीके से करते हैं. एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा सेकंड है एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. तो फिक्स में देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. एक अकाउंटिंग ईयर में जो फिक्स कैपिटल मेथड मेंटेन करेगा उसमें जो अकाउंटिंग का ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर कैपिटल अकाउंट में चेंज नहीं होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ, मीन्स ये जो एक परफॉर्मा बता रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल भी मैंने एक प्रैक्टिकल बताएगा फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग का और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का. तो और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट रखने वाला दो अकाउंट में कैपिटल अकाउंट मेंटेन करता है. एक फिक्स्ड वन और ये जो कैपिटल अकाउंट, और सेकंड एक करंट कैपिटल अकाउंट. दो तरीके से. फ्लक्चुएटिंग में उसका ज़रूरत नहीं रहता है. वो एडिशन और डिडक्शन ये सब जो है वो सब सेम अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में ही होता है. वेरस इन फिक्स कैपिटल मेथड में जो अमाउंट डाल दिया वो चेंज नहीं होता है. फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर्स रहेगा, चारों का जो अमाउंट डाल दिया मीन्स मतलब इन्वेस्ट किया है वो ऐसा ही रहेगा. और जो भी प्रॉफिट एडिशन और ड्राइंग्स ये सब जो है वो अलग से एक करंट अकाउंट मेंटेन करता है, करंट कैपिटल अकाउंट. द बैलेंस एक आप लोगों को जो बताने जो इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ, पार्टनर ए पार्टनर बी बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी तो कैश डाल दिया तो स्टार्टिंग में कैश डाल दिया तो बाय कैश, और बाय बैंक चेक से लाया तो बाय बैंक बाय कैश इतना डाल दिया. ये प्रीवियस ईयर करेगा तो बैलेंस ब्रॉट डाउन बी. अभी कुछ एडिशनल फंड डाल दिया तो ये डाल दिया एडिशनल कैपिटल असेट्स. और कुछ एसेट्स लाया, कोई पार्टनर्स कुछ मैं ये एसेट लाता हूँ करके, तो उसको भी वैल्यू इसमें इसका वैल्यू इसमें डाल देते हैं. तो एसेट्स का लाया उसके हिसाब से टोटल कितना होता है. और उसके बाद में ये जो भी है ईयर एंडिंग में वो जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड करता है. ठीक है. तो उसका जर्नल एंट्रीज ऐसा है. When additional capital is introduced by partners or when new capital is introduced by the partners, then cash or bank cash account या नहीं तो बैंक से लाया तो बैंक account debit to partners capital account. being addition इसका नरेशन ये है
ये सबका टर्म्स का भी मैंने अभी एक सेपरेट वीडियो में बताएगा, व्हाट इज़ नरेशन, व्हाट इज़ एंट्री, व्हाट इज़ डेबिट, व्हाट इज़ ऑल दिस थिंग्स वी विल एक्सप्लेन लेटर। तो ये जो नरेशन में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस और न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, व्हेन अमाउंट इज ब्रॉट इन बाय पार्टनर्स इन फॉर्म ऑफ असेट्स, असेट्स के हिसाब से जो कुछ असेट्स लाएगा, कोई बोलेगा मैं मशीनरी लाएगा, या नहीं तो कोई बोलेगा मैं ये पर्टिकुलर चीज़ लाएगा करके, तो उसका वैल्यू जो रहेगा उसका पर्टिकुलर असेट्स को डेबिट करेगा। फॉर एग्जांपल मशीनरी रहेगा तो मशीन अकाउंट, जो परचेज ऑफ जो मशीनरी अकाउंट, पर्टिकुलर असेट अकाउंट डेबिट वैल्यू डेबिट करेगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसका वैल्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेगा। So being additional capital brought into business in the form of assets or kind. Now partners current account, इसमें जो है partners current account में दो चीज़ होता है, जो अभी फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं तो ये नहीं, ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेगा। जो सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स जो भी है बैलेंस, अगर सरप्लस बैलेंस जो रहेगा तो उसको क्रेडिट करेगा, क्रेडिट बैलेंस ए बी जो बैलेंस ब्रॉट डाउन किया। और जो पार्टनर्स का जो कैपिटल में अगर इंटरेस्ट कंपनी अलाउड कर रहा है तो कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेगा। सैलरीज अगर उनको जो पार्टनर्स को है तो सैलरीज को क्रेडिट करेगा। कमीशन कुछ पार्टनर्स को देना रहेगा तो कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करेगा। और जो भी और उसमें से कुछ अगर कुछ ड्राइंग्स रहेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये कुछ और उनका कोई पार्टनरशिप फर्म है वो ड्राइंग करते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं फर्म, तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट करेगा। और ड्राइंग्स जो भी पर्सनल ड्राइंग्स जो रहते हैं वो डेबिट करेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर इन लॉस, वो भी सब उसमें जो लॉस रहेगा तो उसको डेबिट करेगा। इधर अगर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अगर प्रॉफिट रहेगा तो इधर क्रेडिट करता है, और जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड करता है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करता है करंट अकाउंट में ही। नेक्स्ट है, और यहाँ क्या होता है, अगर सम लॉस था प्रीवियस ईयर में तो लॉस को ब्रॉट फॉरवर्ड करता है, और ये सब चीज़ डेबिट करता है, और बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करता है। इधर लॉस रहेगा तो ये बैलेंस इधर कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, बिकॉज डेबिट साइड इज मोर। इफ़ द क्रेडिट साइड इज मोर, ये इधर का जो टोटल अगर ज़्यादा रहेगा तो दिस विल बी अ सरप्लस जो वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। या ये साइड का डेबिट, ये साइड का अगर ज़्यादा रहेगा तो इधर लॉस कैरी फॉरवर्ड करेगा, डेफिसिट। जर्नल एंट्रीज, इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट अगर दिया रहेगा तो इंटरेस्ट को डेबिट करके, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंडिचर टू द बिजनेस, सो इंटरेस्ट को डेबिट करेगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्रेडिट करेगा, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड प्रॉफिट, उसका सेकेंड इफेक्ट, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ये बीइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू इफेक्ट्स हो जाते हैं इसमें इसके लिए। और बीइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। फाइनली व्हेन सैलरी और कमीशन अलाउड टू पार्टनर्स, तो सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट इज एन एक्सपेंडिचर टू द बिजनेस टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, तो ये एंट्री हो गया। और फाइनली बीइंग सैलरी और कमीशन ड्यू टू पार्टनर्स, अभी लास्ट में जो एंड ऑफ द ईयर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज और कमीशन अकाउंट, तो वो क्लोज हो जाता है। तो बीइंग सैलरी और कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ कैश और गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए अगर जो भी पैसा कंपनी से लेते हैं उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, या कुछ भी मटेरियल लेते हैं तो वो भी उसको ड्राइंग्स में कंसिडर किया जाता है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और गुड्स अकाउंट, बीइंग कैश और गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ बाय पार्टनर्स। और उसके जो लास्ट में उसको कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट करेगा, तो ड्राइंग्स अकाउंट क्लोज किया और ये जो इसमें आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में आ गया। बीइंग पार्टनर्स ड्राइंग ट्रांसफर टू कैपिटल करंट अकाउंट। नाउ इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स, अभी ये जो है ये अभी ये जो खर्चा, ये सब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है वो कंपनीज का जो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, वेरस
ये जो है इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स इज एन इनकम टू द बिजनेस, क्योंकि पार्टनर्स का जो ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज बाय द फर्म, मतलब ये देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड इज एन इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट. नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये इनकम का तरीके से आ गया, जो क्रेडिट आ गया, इंटरेस्ट आ गया. बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नो ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, अभी नेट प्रॉफिट जो फाइनली आ गया, नेट लॉस रहेगा नेट प्रॉफिट रहेगा, तो नेट प्रॉफिट अगर ट्रांसफर करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट. नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस रहेगा तो क्या करेगा, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट, फिर पार्टनर्स प्रॉफिट अकाउंट लॉस अकाउंट टू पार्टनर्स अकाउंट, सब क्रेडिट आ गया, ये गया उसको करंट अकाउंट में जो प्रॉफिट ऐड हो गया. समझो इधर पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, मतलब जो करंट अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में से रिड्यूस हो गया, डिडक्ट हो गया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग नेट लॉस adjusted in and transferred to partners capital current account. Now effect in profit and loss account, interest on drawings charged by the firm is an income, so it is credited. Interest on capital payable to partners is an expense, so it is debited. Interest on partners loan payable to partner is an expense, so it is debited. Salary paid or payable to partner is an expense, so it is debited. Commission paid or payable to partner is expense, so it is debited. Interest on loan, salary to partner, these are expenditure, so it is debited to the current capital account. Now fluctuating method में देखो इधर देखो ये जो इंटरेस्ट मिला है ड्राइंग्स में वो क्रेडिट किया, बाकी का सब जो है उसका कंपनीज का जो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया, बिकॉज दैट इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस. आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस करंट फिक्स कैपिटल मेथड, आपको समझ में आया रहेगा, नहीं तो बार बार देख लीजिए, इट इज इजी, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. नाउ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक ही अकाउंट कैपिटल अकाउंट मेंटेन करता है. इधर स्टार्टिंग रहेगा तो बाय कैश और बैंक इंट्रोड्यूस किया, जो इधर डेबिट बैलेंस रहेगा तो इधर मतलब कैपिटल नहीं है तो माइनस बैलेंस में रहेगा तो इधर ये किया. ये सब होता नहीं है, करंट अकाउंट में होता है, लेकिन ये जो कैपिटल फिक्स कैपिटल में नहीं होता है, लेकिन अगर कुछ हो गया तो ये ब्रॉट डाउन करना पड़ता है. और नॉर्मली जो सरप्लस बैलेंस रहेगा, जो क्रेडिट बैलेंस रहेगा जो कैपिटल अकाउंट में, वो क्रेडिट बैलेंस इधर ब्रॉट डाउन करते हैं. ना कुछ एडिशनल रहेगा, एडिशन मेड किया रहेगा तो बाय कैश और बैंक, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरीज, बाय कमीशन, मतलब कमीशन दिया रहेगा तो, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट का जो है वो पार्ट भी इधर ऐड करते हैं. अगर समझो इधर और उसमें से ये जो जितना भी इधर इतना ये जो है इधर, इसमें से ये जो ड्राइंग अकाउंट डेबिट किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट किया, और कुछ लॉस रहेगा ड्यूरिंग द ईयर में वो ये किया, तो इसमें से जो भी ये जिसमें से इतना पार्ट अगर माइनस करके जो बैलेंस रहेगा, सरप्लस रहेगा, तो वो कैरी फॉरवर्ड करता है. ठीक है, ये जो इधर कैरी फॉरवर्ड करता है, या इधर कुछ समझो ये साइड ही जास्ती है तो इधर वो बैलेंस लॉस कैरी फॉरवर्ड करता है. तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, तो ये फिर नेक्स्ट ईयर में वो कैरी फॉरवर्ड का बिगिनिंग में बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लेके आता है. ठीक है, दिस इज कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. नाउ मैंने एक एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ. ठीक है, Ram and Shyam are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3. On 1st April 2019, the capital balance are Ram 60,000 and Shyam 30,000 rupees. Their drawings are 12,000 rupees and 10,000 rupees respectively. As per the agreement, partners are allowed 10% interest on capital and interest on drawings to be charged at 12% per annum. Ram gets salary of 2,500 per month and Shyam is entitled to get a commission at the rate of 3% on net sales, which is 5 lakhs rupees.
नेट सेल्स का द फर्म्स प्रॉफिट इज 60,000 रुपीज़। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें से फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को बनाना है। तो ये एग्जाम्पल का तरीके से आपको बताएगा। इधर ऑलरेडी आप लोग को ये जो सब चीज़ बताया है, अभी ये एग्जाम्पल बताएगा तो अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा एक अकाउंट कैसा मेंटेन करता है करके। नो फिक्स कैपिटल मेथड में देखो, फिक्स कैपिटल में जो भी ये दिया है था, मतलब 60,000 और 30,000 है राम और श्याम। ये जो बैलेंस जो ब्रॉड डाउन है तो वो है 60,000, यह है 60,000 और 30,000, और वही बैलेंस जो लास्ट में कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, बिकॉज दिस अकाउंट विल नॉट चेंज। दिस फिक्स मेथड में ये जो पर्टिकुलर अकाउंट जो है कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं होता है, कैरी फॉरवर्ड करता है। और इनका जो भी जो ट्रांजैक्शन जो ड्यूरिंग द ईयर होता है वो करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट में करता है। लास्ट इसमें मैं बताया था फिक्स कैपिटल मेथड में 2 टाइप्स कैपिटल अकाउंट रखता है, एक फिक्स वन और एक करंट वन, करंट कैपिटल अकाउंट। तो ये अमाउंट चेंज नहीं होता है, सेम कैरी फॉरवर्ड कंटिन्यू होता है। नाउ सेम वे, नाउ करंट अकाउंट में इसमें खाली जो भी एडिशन रहेगा तो वो ये होता है। तो नाउ करंट अकाउंट में बाकी ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन हो जाता है, इसको करंट पार्टनर्स करंट अकाउंट। बैलेंस ब्रॉट डाउन कुछ रहेगा तो ये करेगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करता है। इंटरेस्ट जो पार्टनर्स को दिया है, सैलरी पार्टनर को दिया है, इधर इधर देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 का हाउ मच 10% ऑन इंटरेस्ट। सो 60,000 का 6,000 और 30,000 का 10% 3,000, 6,000 3,000 कैरी फॉरवर्ड इसमें करंट अकाउंट में आ गया। और सैलरी किसको दिया है 2,500, राम को 2,500, 12 मंथ्स का 30,000 आ गया। और कमीशन किसको है श्याम को, एंड सैलरी सिर्फ राम को है और श्याम एंटाइटल फॉर कमीशन। श्याम को सिर्फ कमीशन है ऑन सेल्स 3%, तो 5 3 are 15, तो 15,000 कमीशन। सो नाउ उसमें से कुछ ड्राइंग्स कितना बताया है 12,000 और 10,000, 12,000 और 10,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12%। तो ड्राइंग्स इतना है। अच्छा, तो उसका क्या होता है वर्किंग नोट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% 60,000, ये जो वर्किंग नोट दिया है रेट 10% 60,000 और 6,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% है, 10% है। तो इंटरेस्ट पेड पर एनम 1,440 मीन्स 12 सर 114, तो 140 और 12 10 आर 12, तो 1,200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 720। वाई? बिकॉज ये जो होता है 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 अपॉन 100 अपॉन इंटू 6 अपॉन 12। मतलब अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ऑलवेज टेकन फॉर 6 months इन केस ऑफ इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट मेंशन्ड। अगर समझो इधर डेट दिया होता था, ये ड्राइंग्स का ये जो ये पीरियड में दिया है और मंथली इतना, ये जो डेट अगर दिया नहीं रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलवेज 6 months का ही लेता है, हाफ ईयर का 6 months का लेते हैं। अगर डेट दिया रहेगा तो बता लगे डेट पर्टिकुलर डेट में इतना 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 करके देगा, तो दैट ये देखते हैं। इन केस ऑफ if that date is not mentioned then 6 months का लेता है। that is the reason इधर 6,720 आ गया, इधर वर्किंग नोट दिया है। now salary to राम 12,000 30,000 ये सब दिया है 15,000। now distribution of profit 2:3% में, मतलब ये समझो इसका जो टोटल जो है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, इधर फर्म्स प्रॉफिट इज 60,000। अभी उनको प्रॉफिट देना है, प्रॉफिट इसमें ऐड करने का है, तो 60,000 प्रॉफिट है, उसका रेशियो क्या है 2:3। तो 2:3 में इधर प्रॉफिट शेयर किया है, नेट प्रॉफिट। तो राम 24,000 वो उसका ये है 60,000 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 24,000। राम को 24,000 और श्याम को 36,000, मतलब 60,000 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3। इसको 2 पार्ट है और उसको 3 पार्ट है, राम को 2 पार्ट और श्याम को 3 पार्ट, ऐसा है 2:3।
सो वो प्रॉफिट ऐड किया, और ये जो टोटल जो है उसमें से ये जो माइनस करके ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके ये इधर आ गया, ठीक है। देखो ये जो इधर आ गया कैरी फॉरवर्ड, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं करंट अकाउंट में। नाउ फिक्स कैपिटल मेथड कंप्लीट हो गया। अभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में खाली एक ही अकाउंट मेंटेन करता है। इधर वर्किंग नोट इधर ऑलरेडी दिया हुआ है ये वाला, तो इसके हिसाब से जो सेम जिसको हम लोग एक फ्लक्चुएटिंग मेथड में भी बताएगा। जो बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है 60,000, जो राम और श्याम का अकाउंट में कैपिटल अकाउंट बैलेंस ब्रॉड डाउन किया, इंटरेस्ट ऐड किया। सेम ही जो करंट अकाउंट इधर जो पहले का जो है ये फिक्स, ये जो इधर पहला इधर आ गया फिक्स वाले का, और उसके बाद में जो भी करंट अकाउंट में जो होता है कैपिटल अकाउंट में वो इधर आ गया, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट। और इधर जो है वो ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये सब डाल के बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया। इधर देखो टोटल दिस प्लस ये समझो 60 प्लस 47 ये आ गया, तो 1,07,000 जो कैरी फॉरवर्ड किया, इधर 73,000 ऐसा ब्रॉड डाउन किया है। तो आई थिंक इट इज़ श्योर यू गॉट माई मीन्स दिस अकाउंट वेरी वेल। अगर मालूम नहीं रहेगा तो बार बार देख लीजिए, इट्स वेरी सिंपल, थोड़ा लॉजिक और थोड़ा ध्यान से देखेगा तो समझ में आ जाएगा। ओके, होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग। लेट्स कम बैक टू अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताएगा, देन वी विल कंक्लूड दिस। ओके, व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? Accounting equation states that a company's total assets are equal to the sum of its liabilities and its shareholders' equity. A company's total assets are equal to liabilities. That is a balance sheet formula. Assets is equal to liabilities. This straightforward relationship between assets, liabilities and equity is considered to be the foundation of double entry accounting system. The assets is equal to liabilities, तो ये टोटल हो जाता है। लाइबिलिटीज़ में दो पार्ट आते हैं, ओनर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, यानी तो पार्टनर्स कैपिटल, दैट प्लस अदर लाइबिलिटीज़, वो टोटल मिला के एसेट्स, टोटल एसेट्स एसेट साइड में हो जाता है, और ये बैलेंसिंग हो जाता है। The accounting equation ensures that the balance sheet remains balanced. Balance sheet must be always balanced, difference नहीं होना चाहिए। That is, each entry made on the debit side has a corresponding entry on the credit side. It's already explained in the double entry system. The accounting equation is also called the basic accounting equation or balance sheet equation. Now, the accounting equation is considered to be the foundation of double entry accounting system. It's already explained. Assets represents the valuable resources controlled by the company. The liabilities represent their obligation. Assets बोलेगा तो कंपनी में क्या है, क्या उसके जो वर्थ है, क्या है, जितना है कंपनीज का जो है एसेट। फॉर एग्जांपल अभी आप किसी के पास जो कुछ प्रॉपर्टी रहेगा, ये मेरा एसेट है, या कुछ गोल्ड रहेगा या कुछ कैश बैंक में रहेगा, तो दिस आर माई एसेट्स एसेट्स। वेरस अभी उसको एक व्यक्ति को कुछ पैसा देना है, कुछ लोन देना है या किसी को कुछ देना है, वो सब लाइबिलिटी हो जाता है। सेम वे कंपनी का भी, जितना कंपनी के पास जो एसेट्स है वो उसका प्रॉपर्टीज़, मशीनरीज, जो वट एवर इट इज, स्टॉक और जो सब एसेट्स हो जाता है, उसके सामने कुछ देना है, और ओनर को जो देना है दैट इज़ कैपिटल, ओनर तो दैट इज़ कैपिटल, एंड बाहर का आउटसाइड पार्टीज़ को देना है वो सब लाइबिलिटीज़, अदर लाइबिलिटीज़, वो जो भी होता है आउटसाइड लाइबिलिटीज़। तो that is obligations. Both liabilities and shareholders' equities represent how the assets of a company are financed. तो ये जो बाहर से जो कुछ जो शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं या बाहर से कुछ लोन लेते हैं, वो दोनों किसके लिए, जो कंपनीज के एसेट्स के लिए, जो ऑपरेशंस के लिए, जो एसेट्स के लिए जो लेते हैं। फाइनेंसिंग थ्रू डेट शोज as a liability, while financing through issuing equity shares appears in shareholders equity. फाइनेंसिंग थ्रू डेट मतलब लोन लेना, उधारी लेने से उसको लाइबिलिटीज़ को आउटसाइड लाइबिलिटी बोलते हैं। वाइल फाइनेंसिंग थ्रू मतलब कंपनी को फाइनेंस इक्विटी शेयर से करे तो शेयर होल्डर्स इक्विटी बोलते हैं। या कोई जो पार्टनर्स फंड्स डालते हैं तो
वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ओनर मीन्स जो प्रॉपर्टर रहेगा तो प्रॉपर्टर कैपिटल अकाउंट. एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, दैट इज अ मेन अकाउंटिंग इक्वेशन. और इसमें भी लाइबिलिटीज इज इक्वल टू, अभी इसमें से लाइबिलिटी बोलेगा तो कैपिटल, ओनर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड प्लस आउटसाइड एंड इनसाइड लाइबिलिटीज. इनसाइड लाइबिलिटीज बोलेगा तो अभी फॉर एग्जांपल फंड्स, अभी समझो कंपनीज का जो एम्प्लॉयज़ को या कुछ इंटरनल कुछ जो रहेगा उनको सब देना रहेगा, वो बाकी रहेगा वो लाइबिलिटीज़, अदर लाइबिलिटीज़ बोलते हैं उसको. और बाकी जो कुछ आउटसाइड लाइबिलिटीज़ में है, समझो बैंक का कुछ लोन रहेगा, या कुछ वेंडर्स, कुछ सप्लायर्स रहेगा, क्रेडिटर्स का, सेंट्रल क्रेडिटर्स का रहेगा, या टैक्स लाइबिलिटीज़ रहेगा, ये सब आउटसाइड लाइबिलिटीज़ में आ जाता है, बाहर का जो पार्टीज़ को देने का. इनसाइड लाइबिलिटीज़ बोलेगा तो जो इंटरनल जो कंपनीज़ का जो कोई स्टाफ को या कुछ इंटरनल जो व्यक्ति को कुछ देना रहेगा, दैट इज़ इंटरनल लाइबिलिटी, बट इट इज़ अ लाइबिलिटी टू द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी टू द इनसाइड पार्टीज़. So now the liabilities are these types: capital, fund, or outside liability and inside liability. Now capital is equal to assets minus liabilities. ये capital क्या होता है? टोटल assets में से जो भी liabilities माइनस करेगा तो capital होता है. liabilities बोलेगा तो assets is equal to liabilities. कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो कैपिटल जाता है. फॉर एग्जांपल लाइबिलिटीज आई टोल्ड यू दैट मीन्स इट इज अ कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटीज है. तो जो कैपिटल बोलेगा तो जो एसेट्स में से जो आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस करेगा तो ये कैपिटल फंड आ जाता है. कैपिटल, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. Now again, the first preference of any student who completes 12th or graduation is to get a job. Many of them continue their higher education along with a job. अभी जो what is the importance and what is the benefit of learning accounts, ये जो हर इसमें भी मीन्स जो कंक्लूशन में बताएगा. ये पहला प्रायोरिटी क्या होता है स्टूडेंट्स को, ये जो 12वीं कंप्लीट करके मोस्टली पब्लिक स्टूडेंट्स कुछ छोटा पार्ट टाइम जॉब ले लेता है या कोई साइड जॉब ले लेता है और उसके साथ में उसका हायर एजुकेशन करता है. मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर. तो हायर एजुकेशन कंटिन्यू करता है जॉब के साथ में, तो उनके लिए भी वो ये सब जो चीज़ जो मुझे कुछ ऐसा कुछ ये करके कुछ काम करना है तो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ये सब. Your great desires can only be fulfilled if you understand importance of commerce and become an entrepreneur. जो भी व्यक्ति का जो अगर टारगेट है या कुछ इच्छा है, जो मेन बड़ा इच्छा रहेगा, वो अगर फुलफिल करना रहेगा, वो उसका अकाउंट्स का और कॉमर्स का इंपॉर्टेंस मालूम पड़ने के बाद में एक एंटरप्रेन्योर बनेगा तो उनका जो लक्ष्य हो जो भी है डिज़ायर्स फुलफिल कर सकता है, जो एम्बिशंस. बोलने का रीज़न ये है कि पीपल गेट मोटिवेटेड ये सब सीखने के बाद में. मैं कॉमर्स के बारे में भी एक वीडियो दिया था, फर्स्ट पार्ट में एक वीडियो दिया था, और अकाउंट्स का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डाल दिया है. सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट 2A एंड 2B दो इसमें भी दिया है, एंड दिस अ थर्ड पार्ट. तो कॉमर्स का और इसके बारे में तो बार में बता रहा हूँ इम्पोर्टेंस. तो पब्लिक गेट मोटिवेटेड to start their own business. Okay, and same with some छोटा जो भी जो स्टडी करके आता है उनको जॉब करने में, पार्ट टाइम जॉब करने में भी ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है. सेम वे बिजनेसमैन ऑल्सो कैन लर्न अकाउंट्स while watching and learning through my videos. अकाउंटिंग इज़ अ डिसेंट एंड रेस्पेक्टेड प्रोफेशन. ये समझ लो अकाउंटिंग एक डिसेंट और रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है. We have already discussed and illustrated about accounting aspects: journal, subsidiary register, posting, ledger account, accounting equation, etc. Now in the next video, part 4, I will show pro forma of financial statements. Thank you for watching. Consider you like the video, and this will be helpful to you. Please subscribe, comment and share to your contacts.